Today we will summarize the previous lecture in a few minutes. First one, 0 factorial equal to 1 and p are equal to n factorial upon n minus r factorial. n p n equal to n factorial. If this is the factorial of p, then it is n factorial. Second one, we have to know about the repetition of permutation. If there is repetition, then we have to repetition in the all, then it will be like n factorial upon p1, p2, p3. And some formulas of combinations which is important to solve the question, that is NCR equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial, and nc0 equal to 1 and nc1 equal to 1. ncn equal to 1 and nc0 equal to 1 and ncn equal to 1. Now we will apply these formula in questions. You can see my first lecture where I had discussed all the things. See question number 1. Here is question: in how many different ways can the letters of the bakery be arranged? So first we have to know that how many total word in the letters. How many total letters here? B, A, K, E, R and Y. How many total letters? Here is 6. So it means it is, if we have to take arrangement of all the letter, so it means N, P, N, then NPN equal to N factorial. And one thing we have to remember, that there is repetition. If here is repetition about the any word, then we have to put P1, P2 in the fraction var, but in the fraction var, but here is not any repetition, so it will be only n factorial. So 6 factorial. Solve it. Break the factorial notation. 6 into 6 minus 1 into 6 minus 2 and so on until we got 1 equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Calculate it. This is your answer. Calculate it. You will got your answer. 34 ja 120 and 6 equal to 0, 2, 1 and 720. So this is your answer. So here is option C. Now let us see the next question. In how many different ways can the letters of the word capital be arranged so that the vowels always come together? In how many different ways can the letters of the word capital be arranged so that the vowels always come together? तो हमने देखना है कैपिटल क्या है? कैपिटल में कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7 word. In the capital it is 7 word, but arrange so that vowels always come together. तो vowels को अलग करना पड़ेगा हमें, ताकि इनको T L और vowels क्या है A I A,
तो इसका एक पूरा क्या है, सेट बन गया कि वोवेल्स एक ही जगह आने चाहिए, इसीलिए हमने इसका एक सेट बना दिया। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गए 4 फैक्टोरियल प्लस एक इसका हो गया 1 फैक्टोरियल, तो कितने हो गए ये 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। लेकिन जो ये आपका वोवेल्स का सेट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, विद इन ए रेंज। तो इसका क्या आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन ए कितने बारी है 2 बारी, तो एक आएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे करें 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसल बचे 3। तो टोटल कितने सेट बनेंगे 120 इंटू 3 0 6 3, इसका क्या आंसर 360। Now let us see the next. In how many ways can the letters of the word mathematics be arranged so that the all vowels always come together? अब मैथमेटिक्स को कितने इससे अरेंज कर सकते हैं ताकि वोवल्स इसके एक साथ आए। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट को अलग करते हैं, एम टी एच एम टी सी एस, रोल क्या है ए ई ए आई का एक क्या बन गया सेट, क्योंकि हमने क्या करना है वोवल्स को एक साथ ही लिखना है। और ये कंसोनेंट कितने हैं, कंसोनेंट अलग अलग है तो ये अपने आप में अलग से अरेंज हो गए। आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7, कंसोनेंट कितने हैं 7 प्लस वोवल्स के कितना है एक सेट है, तो ये बनेगा 1 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया इक्वल ये। और इसमें क्या है आपको एक चीज़ देखनी है कि कौन से जो कॉन्सोनेंट है और रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रही है कितने बार हो रहे हैं एम 2 बार 2 फैक्टोरियल, और टी भी 2 बार 2 फैक्टोरियल, एच 1 है सी 1 है एस 1 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसल कैंसल, 2 से ये गया। इसका टोटल आपके पास आएगा 10080, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है आपने, जो ये है यहाँ आपका वोवेल्स, ये क्या आएगा, ये भी तो अपने आप में अरेंज होगा। तो कितने बारी होगा ये 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। रिपीटेशन है कोई तो उसको फ्रैक्शन बार में लिख दो 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 1 टाइम है तो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखे चाहे ना लिखे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 कैंसल, ये क्या आएगा इसका आंसर 12। तो 12 और तो आंसर क्या होगा, जो आपका पहले आया था ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर 12। तो क्या आया आंसर होगा 120960, ये हमारा आंसर है आंसर बी। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in how many different ways can the letter of the word machine be arranged so that the vowels may occupy only the odd position? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले टोटल वर्ड कितने हैं 7, टोटल वर्ड है आपके 7, 1 2 3
4 5 6 7। पहले कॉन्सोनेंट देखो कितने, MCHN, 4 कॉन्सोनेंट है। और वोवल कितने हैं, वोवल कितने हैं, एक तो AIE, 3 है वोवल। तो वोवल कहाँ कहाँ आ सकते हैं, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, क्योंकि वोवल जो है ओनली ऑड पोजीशन में आ सकते हैं। तो क्या बनेगा इसका, 4P3, 4P3, 3 में वोवल्स आएंगे किसी भी इसमें ऑड में। तो और इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 है और रिमेनिंग पोजीशन कितनी है, 4, 3 ही ऑड वाली और एक जो यहाँ से बचेगी हमारी ऑड वाली, और 3 इवन वाली। तो वी कैन राइट इट लाइक इट 4P4। तो हम इसको 4P4 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो। NPN बताया था कितना होता है, ऑल का क्या होता है, ऑल का होता है n फैक्टोरियल। तो कितना बना ये, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। और ये कैसा बना, NPR, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो ये भी बन गया आपका सेम 24। तो टोटल कितना हो गया, 24 इंटू 24 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 576। तो आंसर क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन हाउ मेनी different ways can the letter of the word digest be arranged so that the vowel are never together? इसमें क्या देखना, हमने डाइजेस्ट को ऐसे अरेंज करना है कि वोवल टुगेदर ना आए। इसको कैसे करेंगे, पहले वही काउंट करते हैं कि कितने वर्ड है, DIGES और T, डाइजेस्ट। कितने इसमें, 3 और 3 6, मतलब 6 वर्ड है इसमें टोटल। टोटल कितने डाइजेस्ट में, 6 वर्ड। तो इसको ऐसे लिखना है आपने कि जो वोवल्स है वो नेवर टुगेदर आए। तो पहले इसको कॉन्सोनेंट अलग करते हैं, DGST और I, और क्या है आपका E। ठीक है, जैसे डाइजेस्ट वर्ड को लिखा हुआ है, तो इसमें कितने सेट बने, वही वोवल्स का कितना बना, एक सेट, और इसका कितना बना, 4, 4 प्लस 1। तो क्या है, 4 प्लस 1 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को वही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें देखो कोई रिपीटेशन तो नहीं है, अगर रिपीटेशन हुई तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शन बार के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं है तो ये हो गया 120। एंड नेक्स्ट जो ये है, इसको भी हम क्या है, विद इन इसकी क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कितनी होगी, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो कितना हो गया ये टोटल, 120 इंटू 2, 0 4 2, 240। इसका 240 है। लेकिन अब इसको देखते हैं कि हम इसको पूरा कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर है आपके 6। तो क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल ऑल का, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा वैल्यू, 6 5 जा 30, 34 जा 120, और 123 जा 120 इंटू 6। तो कितना हो गया ये आपका 720 टोटल।
तो अब क्या करो, ये हम इनको टोटल वे से अरेंज कर सकते हैं इस वर्ड को, लेकिन जिसमें वोवल टुगेदर आएगी वो कितनी कंडीशन है, 240। तो हमारे से पूछा है कि नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर के लिए क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे जितने में टुगेदर हो गए 240 में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करके आपका आंसर आएगा 480, आंसर 480। Now next question is, in how many different ways can the letters of the word detail be arranged so that the vowels occupy only the odd position? अब हमारे पास क्या है, एक वर्ड दिया हुआ, डिटेल, DETAIL। डिटेल कितने टोटल इसमें 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लिखना है वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ओड पोजीशन। ओड पोजीशन क्या है, या 1 पे या 3 पे या 5 पे। तो इसमें कैसे आएगा कि केवल जो आपके वोवल्स है वो इन पोजीशन में है। तो आपने देखना है कि कितने इसमें वोवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, डी टी और एल, 3 है कॉन्सोनेंट, और वोवल कितने हैं, ई ए आई, 3 क्या है वोवल्स, 3 क्या है वोवल्स आपके। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी वोवल्स की, 3 वोवल है और 3 ऑड पोजीशन है, तो कैसे बनेगा 3p3, 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, तो इसका हो गया 6। अब कॉन्सोनेंट देखो, कॉन्सोनेंट कहाँ आ सकते हैं, 2 पे 4 पे और 6 पे, तो इसका भी बनेगा 3p3, क्या गया 6। तो टोटल कैसी ऐसी अरेंजमेंट बनेगी कि ऑड पोजीशन में आए वोवल्स, ये बनेगी 6 इंटू 6, 36 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर मेड फ्रॉम 2 3 4 5 6 9 विच आर इवन। अब इसमें क्या है, हमने देखना है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है एक हमने, इसमें से तो कितना है 1 2 3 4। How many 4 digit numbers are made from 2 3 4 5 6 9 which are even। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है, फर्स्ट पोजीशन में 6 में से कोई भी आ सकता है, 6 6 6। और इवन का रूल क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका डिविजिबल होना चाहिए बाई 2, डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल कौन सा है हमारे, इसमें एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, यानी कि 3। तो ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करने में 6 और 8, ये क्या हो गया आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट आर इवन। कितने डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट आर इवन। तो 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है हमने जिसमें क्या हो, सारे डिजिट क्या हो, इवन हो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या है, इवन है 0 2 4 6 8, बाकी क्या है रेस्ट ऑड जो बच गए। तो हमने यहाँ क्या है, एक नंबर बनाना है 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या, पहले इसमें कितने लिख सकते हैं हम, 2 4 6 8, यानी कि 4 फर्स्ट में लिख सकते हैं हम 4, और सेकंड में कितने लिख सकते हैं 4, क्योंकि जो 0 है वो फर्स्ट में काउंट नहीं होगी। अगर हमने 0 यहाँ काउंट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 डिजिट का होगा, इसीलिए हमने कितने का बनाना है,
3 डिजिट का नंबर, तो इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई फर्स्ट में। अब सेकंड में अगर इनमें से कोई एक आ गया, मान के चलो कि 8 आ गया, तो अब सेकंड पोजीशन में 0 आ सकती है, तो फिर कितने आए 4। तो सेकंड में इवन नंबर ही हमने इसमें से चूज करने, तो इवन नंबर कितने हैं 0 2 4 6 8, तो 0 फर्स्ट में नहीं आएगी, तो कितने ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट में 4, और बाकी में 0 आ सकती है, तो कितने हुए 3 और 2 5, तो 5 5, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि रिपीट होगा या नहीं होगा, तो आप यहाँ रिपीटेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 100। 4 × 5 × 5, तो ये बन गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट आर ऑड। इसमें क्या है, ऑल द डिजिट आर ऑड, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑड कितने हैं, ऑड देखो 1 3 5 7 एंड 9, ये क्या हो गया आपका 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपने ऑड में। इसमें लिख सकते हैं हम 3 और 2 5 5, इसमें हम सारे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 0 है 0 तो इवन है, इसीलिए ये 5 5 5 5, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 3 टाइम है, तो ये आपका आंसर हो गया 25 पंजे 125, ये आपका हो गया आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड using 0 5 2 4 using each digit exactly once लिखा है इसमें। अभी तक क्या है, रिपीटेशन अलाउड थी, लेकिन यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 0 5 2 और 4, इससे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट चांस हमारे पास है 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 फर्स्ट में नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड में क्या है, यहाँ से एक यूज हो गया, तो ये कैंसिल, मतलब इसको अब हम आगे यूज नहीं कर सकते, तो 3 ऑप्शन बचे हमारे पास 0 को ऐड करके, तो यहाँ से एक ऐड हो जाएगा कोई ना कोई, तो लास्ट में कितने बचेंगे हमारे पास 2, तो ये बनेगा 9 18, 18 आपका आंसर हो गया है। अब एक क्वेश्चन और देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 5 6 8 ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। तो ईच डिजिट क्या करना है हमने एग्जैक्टली वंस, तो क्या है 4 4 इंटू 4 5 6 8, अब इससे हमने क्या बनाना है 3 डिजिट का नंबर बनाना है एक, इसमें एग्जैक्टली वंस बोला हुआ है, एग्जैक्टली वंस यूज होगा, तो यहाँ कितने हो गए फर्स्ट में 4 ऑप्शन, फिर कितने हो गए 3, फिर कितने हो गए 2, इसमें कितने हो गए टोटल 24 आंसर। Thank you for watching. We will continue this series and different kind of question we'll discuss here.